Very good morning to you all children. So today we'll start a new chapter. The name of the chapter is articles. So today we'll be learning about what articles are. So you will revise the use of articles, and we will learn about the omission of articles, where we should put articles and where we should omit them. Omit मतलब हमें हटाना है उसे. So articles basically क्या हैं? Articles आपके a, an and the. A and the are the articles. इसमें से a and an are indefinite articles and the is definite article. The जिसे बोलते हैं या the बोलते हैं, we pronounce it in different ways. So definite article is the and indefinite articles are a and an. So you know that an article is a word that comes before a noun. Noun से पहले आता है a toy, a boy. एंड किसके साथ आता है? दैट यू नो वेरी वेल. हमने पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है दैट एन इज़ यूज्ड व्हेन देयर आर वॉवल्स. जो भी वॉवल से शुरू हुआ वर्ड होता है, नाउन होता है, उसके आगे हम एन लगाते हैं. So a and an are indefinite articles and they are used when we are not talking of any person or thing in particular. जब हम a and an हम तब use करते हैं when we are not talking of any person or thing in particular. हम किसी के बारे में particularly ख़ास तौर पे बात नहीं कर रहे होते. the तब use होता है. the ये जो होता है definite article that is used when we are talking about something, some particular thing or person. So I'll explain you with examples, few more examples later on. First of all, we'll read about indefinite articles. So a and n are indefinite articles and they are used with singular countable nouns. Singular countable nouns like a singer. So we can count singer, so that is why we are writing a. Her mother is also an artist, so this is singular noun and that is countable also. So we are writing an. Why we are writing an in front of artist? Because an artist starts from a and a, e, I, o, u are vowels, and we have to just be specific that sometimes children vowel दिखता है, बट कई बार देर आर वेरियस पॉइंट्स रिगार्डिंग दैट. कई बार वॉवल दिख रहा है बट उसकी साउंड नहीं है वैसी. अगर ऑनर लिखा है, ऑनर है, ऑनेस्ट है, सो ऑनर और ऑनेस्ट जो है लिखा तो एच से जाता है बट उसकी साउंड में हम ओ को प्रोनाउंस करते हैं. सो व्हेन वी डोंट से हॉनर एंड हॉनेस्ट, वी से ऑनर एंड ऑनेस्ट. सो समटाइम्स रूल डजंट अप्लाई लाइक दैट. रूल अप्लाइज फॉर द साउंड. अगर हम ऑनर और ऑनेस्ट कह रहे हैं सो वी विल नॉट टेक इट एच, वी विल टेक द साउंड एंड तब उसके आगे एन लगेगा. सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक रिगार्डिंग द sound of particular thing. Okay. A is used before words that begin with consonant sound. A उसके साथ लगता है जो consonant sound के होते हैं. and you know from all the alphabets apart from A, E, I, O, U which are vowels, उसके अलावा सारे बाकी के जो alphabet हैं consonant है उनके आगे हम A use करते हैं. a busy person, a table, a university. Now see, it is starting, university is starting from U, but the sound of a is not coming. A, E, I, O, U. So it has a sound of a consonant. University, य की sound है. So हम sound से चलते हैं. So बेशक university is starting from U. U might be a vowel, but we are going by the sound. So we will write a university. We will not write an university. A 1 rupee coin. So a 1 rupee coin, 1 rupee coin has O, but the sound is different. So we will write व की साउंड है. सो वी विल गो विद द फोनेटिक साउंड्स. वी वॉट एवर वी प्रोनाउंस हम उसी तरीके से. तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक. आपको थोड़ा सा ये लर्न करना पड़ेगा. यू हैव टू रीड दीज थिंग्स सो दैट आपको पता हो यूनिवर्सिटी या 1 रुपी कॉइन, इनके आगे हम अ यूज़ करेंगे, ना कि हम एक बार देखें कि वॉवल है. तो वी शुड नॉट ब्लाइंडली फॉलो दैट. सो इंग्लिश यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल. नाउ नेक्स्ट एन इज़ यूज. एन में भी ऐसे ही होगा. कई बार वॉवल्स होते हुए भी, वॉवल नहीं होने के बावजूद भी अगर साउंड वॉवल की आ रही है सो वी विल राइट एन.
सो यहाँ पर देखिए एन इज़ यूज बिफोर द वर्ड दैट बिगन विद वॉवल साउंड लाइक अनराइप मैंगो. सो अनराइप मैंगो में तो यू था ही. एन इंजीनियर, इंजीनियर में एन आर. एन आवर, एन ऑनेस्ट पर्सन. आवर एंड ऑनेस्ट बोथ स्टार्ट्स फ्रॉम एच बट द साउंड इज ऑफ ओ. सो ओ की साउंड आ रही ओ विच इज़ अ वॉवल. सो वी आर यूजिंग एन फॉर इट. सेम गोज़ फॉर MLA और MP. जो MP MLA जो हम ये एब्रीवेशंस यूज़ करते हैं. सो MLA में M में जो साउंड है वो ए की साउंड आ रही है. M. So we are going with the phonetic sound. So for with MP and MLA we will write in front of that an लिखेंगे. ठीक है. So indefinite articles में I told you about a and an, in which rule varies also. It goes with the phonetic sound. जिस तरह की sound निकलती है उसी से. A के साथ consonant sound के साथ a लगता है and vowels की sound के साथ एन लगता है. सो नाउ ऑन बेसिस ऑफ दिस देर आर सम फिलिंग द ब्लैंक्स विच विल डू. आई विल टेल यू फ्यू एग्जाम्पल्स. मैं आपको 2-3 बताती हूँ, फिर यू हैव टू डू इट योर सेल्फ. लाइक डैश एलिगेटर इज़ डैश डेंजरस रेप्टाइल. सो वी विल राइट वॉट. एलिगेटर के आगे एलिगेटर ए की साउंड है एंड दैट इज़ अ वॉवल. एंड एलिगेटर इज़ अ डेंजरस रेप्टाइल. सो अ डेंजरस बिकॉज कॉन्सोनेंट है. नेक्स्ट, ऑलवेज कीप a dictionary in your bag because dictionary starts with a consonant letter. There is dash important question. So important we are pronouncing I जो है I की sound ही आ रही है and I is a vowel and we will write an important question. So children you have to use your creative thinking and आप लोगों ने क्या learn किया है उसके basis पे you will yourself do this exercise. And in case you don't after trying it yourself after a day or so I will be providing you answers also. So you can recheck your answers with my answers. Okay. Now next we'll move to the definite article. So I told you indefinite में हमारा a and an आ गया. definite में what will come? definite में है the या the कब use होता है? when it refers to a specific or a particular thing. look at the girl in red dress. जब हम बोल रहे हैं उस red dress में उस लड़की को देखो, so we are referring to a particular girl, the girl. so इसी तरीके से the जिसके आगे भी आ जाता है तो वो एक specific चीज़ होती है. तो द कब यूज़ होता है? पहला तो इट यूज्ड व्हेन टू रेफर अ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर थिंग्स. नेक्स्ट, ग्रीन ब्रैकेट में हम देखेंगे क्या लिखा है. द ग्रीन हाईलाइटेड. द इज़ ऑल्सो यूज व्हेन वी आर मेंशनिंग समथिंग अगेन. जब हम कोई चीज़ फिर से बताते हैं दोबारा. जैसे कई बार वी राइट अ सेंटेंस एंड देन वी डोंट हैव टू रिपीट वन और द अदर टाइम. एक बार कुछ लिखा होता है उसके बारे में हमें दोबारा बताना हो तो हम उसको द करके ही मेंशन करते हैं. जैसे आई हैव अ स्टोरी बुक. मेरे पास एक स्टोरी बुक है. द स्टोरी बुक वॉज गिफ्टेड टू मी बाय माई आंट. सो फिर हम उस स्टोरी बुक के बारे में दोबारा मेंशन कर रहे हैं तो उस समय दोबारा रिपीटेड मेंशन करने के टाइम पे हम द यूज़ करते हैं. दे हैव सम एग्स. उनके पास कुछ एग्स हैं. द एग्स विल बी यूज्ड इन केक. वो एग्स जो हैं वो केक में यूज़ होंगे. तो द एग्स हमने दोबारा जब मेंशन दोबारा करना होता है कुछ चीज़ को, समथिंग अगेन वी मेंशन, दैट टाइम वी यूज़ द. नाउ थर्ड टाइम व्हेन द इज़ यूज्ड, ये सब बताए गए हैं कब द यूज़ होता है. अब इन द पर्पल हाईलाइटेड थिंग दे हैव रिटन द इज़ ऑल्सो यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन. सो आई टोल्ड यू व्हाट इज़ द सुपरलेटिव डिग्री. द सुपरलेटिव डिग्री इज़ द लास्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन विच इज़ जैसे गुड, बेटर, बेस्ट. सो बेस्ट जो लास्ट डिग्री जिसके बियॉन्ड कंपैरिजन नहीं होता है. जैसे मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन योर क्लास. सो गुड, बेटर, बेस्ट. बेस्ट इज़ द लास्ट. सो ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट. सो ग्रेटेस्ट जो लास्ट डिग्री होती है वो सुपरलेटिव डिग्री. तो उसके आगे भी द ही लगता है. हु इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन योर क्लास. सो द लगा. मोस्ट इंटेलिजेंट सुपरलेटिव डिग्री थी, उसके आगे द लगा. दिस इज़ द बेस्ट बुक आई हैव एवर सीन. ये बेस्ट बुक है. बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री, उसके आगे भी द लगता है. सो 2 या 3 हमने ये क्लॉज पढ़ लिए जिनके आगे द लगता है. एक और है इन पिंक हाईलाइटेड थिंग. इट इज़ रिटन द इज़ यूज बिफोर द नेम्स ऑफ यूनिक थिंग्स. जब भी
भी कोई यूनिक चीज़ें होती हैं, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सूरज है, द सन, बिकॉज द सन, द अलमाइटी, जो भी एक ही तरीके की कोई चीज़ होती जो कि यूनिक है। सन तो दो नहीं हो सकते, एक जैसा नहीं हो सकता। द मून, द स्टार्स अडॉर्न द स्काई, सो मून स्टार्स ने स्काई को सजा रखा है। सो ये द मून, द स्टार्स, ये एक ही तरीके के होते हैं, सो दे आर यूनिक, सो वी विल यूज़ द फॉर देम. So next, the is used for before the name. Now later last में they have told us that the is used before the names of rivers, seas, ocean, mountain ranges. अच्छा, जब हम किसी का particular famous mountain, buildings, newspaper, ships, किसी का द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, ऐसी जो हम किसी famous like books, seas, वी यूज़ द नेम ऑफ रिवर्स, ऐसे जब हम यूज़ करते हैं तो उनके लिए भी हम द लिखते हैं. द ब्रह्मपुत्र, द आर्कटिक्चर, देर आर मेनी एग्जाम्पल्स गिवन हेयर. यू हैव टू जस्ट गिव अ रीड टू दैट. यू हैव टू रीड इट केयरफुली चिल्ड्रन. वंस आई कंप्लीट द चैप्टर यू हैव टू रीड दैम, सो दैट इन बाय रीडिंग दिस you will be able to understand it better. The Indians, the Hindus, so they are particularly communities, particular like culture, the particular countries, so you have to learn them कि ये इस तरह से the use होता है. The is used with some words like the first, the last, the only, the next. ऐसे कुछ words हैं, last, best, first, only, next, इनके आगे भी the use होता है. So now when it is clear that what definite articles and what indefinite articles are, there are few exercises on the basis of this chapter which you have to do. I'll just explain a few of them so that you can do it yourself, because you need to once you understand that you have to do a brainstorming yourself. आपको खुद भी सोचना होगा और लिखना होगा, so that बिफोर ट्राइंग इट, आप अगर आप ट्राई नहीं करोगे, कोशिश नहीं करोगे, तो आपको क्या समझ में आया, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. मीन वाइल आफ्टर अ डे और सो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू ऑल द आंसर्स फॉर दैट. सो वील जस्ट मूव. मैं इसका आपको 2 या 3 सेंटेंसेस में आपको बताती हूँ. आई विल जस्ट टेल यू द फर्स्ट पैराग्राफ का मैं आंसर बताती हूँ. सो व्हाट इज़ देयर इन दिस फिलिंग द ब्लैंक्स, यू हैव टू फिल द suitable articles and we have to put a cross where articles is not required, article is not required. So यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स में A, N और D से हमें फिनिश करना है इस सेंटेंसेस को. और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वी हैव टू जस्ट फिल इट अप. कई जगह ऐसी है जहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, बट वी हैव टू बी केयरफुल वेदर वी शुड यूज़ इट और नॉट. देयर कैन बी स्पेसेस जहाँ पर ये आर्टिकल्स नहीं लगेंगे, सो देयर वी हैव टू पुट अ क्रॉस. हमें वो क्रॉस डालना है, यहाँ पर ये नहीं लगेगा. जैसे आपको मैं फर्स्ट आपके लिए करके बताती हूँ, बिकॉज फर्स्ट वाले में लाइक फर्स्ट, वंस अपॉन a time there lived a one-eyed monster in a castle. So यहाँ सब में a आएगा. Next, the monster was very cruel. So the monster, because we are referring to him again, so यहाँ the आएगा. He did not allow anyone to stay in the castle. So he did not allow anyone to stay in the castle. Castle के आगे the लगेगा. Whoever tried to enter the castle was killed by him. Full stop. Now next, dash one day, so there is no requirement of any article over here, so we will put a cross over here. One day an inquisitive boy, we are using an because inquisitive में I use हुआ है, vowel है. So one day an inquisitive boy decided to see the castle from inside. He took a long ladder and entered the castle through the window. What a horrible place it was. There were, so we will not use anything because there is no article required here, so we will put a cross. There were dash, we will just leave it with cross. There were skeletons of many animals and human beings in a room. एक room में थे. The boy decided to punish the monster. So the boy decided to punish the monster. So like this we will be writing. So children, you have to do it yourself. Like I'll just tell you one more. Like Mr. Sharma is dash MP. Now see MP जो मैंने आपको बताया था, MP MLA, although M is a consonant, देखने में consonant है, but उसकी sound एक vowel के जैसी M ए. So we will write an MP. ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना. So इस तरीके से इसी sentence में आगे MLA भी लिखा है उसमें, but the MLA of our area,
but the MLA of our area is not good. Again we are using MP or MLA, so we have to write an or the with that. ठीक है, you have to be very careful regarding that. So you can do it yourself and you can just check with me whether you have done it right or not. I can check it. Next is circle the correct option. So I'll just tell you 2-3. We have to just circle the correct option. हम किसके साथ A या an या the आएगा वो. Their sentences have been given. We have to find the correct option. So first sentence is a or the orange that you ate was rotten. So the orange which you ate that you ate was rotten. So we will write the, and the is the correct thing. So the or the whatever you pronounce, you have to circle it. Next is he is a eye specialist or an eye specialist. I है because I is again a vowel, so he is an eye specialist. Next is she was wearing the golden dress that I had gifted her. The golden dress because it is a specific ड्रेस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सो हम यहाँ द यूज़ करेंगे. इसी तरीके से यू हैव टू फिल अदर थिंग्स ऑल्सो एंड यू हैव टू अंडरलाइन. नाउ point to be noted, these tip of the day are important points, children. Whenever you read a chapter, I tell you very specifically that you have to learn them. आपको याद रखने हैं. We don't use the with proper nouns in general, but when we compare someone with someone else, then we use the. वैसे हम proper noun के साथ generally हम the use नहीं करते, but जब हम किसी को किसी के साथ compare करते हैं, जैसे कश्मीर is the Switzerland of India. कश्मीर इंडिया का स्विट्ज़रलैंड है. So we are comparing Kashmir with Switzerland, so that time we are using the. इसी तरीके से रोहित इज़ द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर टीम. सो रोहित सचिन तेंदुलकर के साथ कंपेयर किया जा रहा है, so that is why we are using the. सो इस तरीके से वी यूज़. नेक्स्ट, वी डोंट यूज़ आर्टिकल्स विथ एब्स्ट्रैक्ट और मटीरियल नाउन अनलेस वी पर्टिकुलराइज इट. सो हम आर्टिकल्स के साथ जनरली आर्टिकल्स को हम एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन के साथ जनरली नहीं यूज़ करते. आर्टिकल्स कौन से हैं? लाइक ए एंड दी जो है वो जब तक हमने किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात नहीं की तब तक हम उसे नहीं यूज़ करते. वी गेट वुड फ्रॉम ट्रीज़. सो द वुड इज़ यूज इन द वी गेट वुड फ्रॉम ट्रीज इज़ अ नॉर्मल थिंग. वो तो नॉर्मली है, उसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं है ए एंड दी. The wood used in this table is of good quality, but when we are mentioning specifically about something, हम बताना है कि ये टेबल में जो लकड़ी यूज़ की गई है वो अच्छी क्वालिटी की है. so that is why we are using the. Beauty is admired by all, which is a normal sentence where there is no requirement of any article, but the beauty of Taj Mahal is world famous, so we are specifically particularly relating to the beauty of Taj Mahal, इसीलिए हमने the ब्यूटी ऑफ ताज महल लिखा है. ठीक है, सो यहाँ ये आपको समझने की ज़रूरत है. नेक्स्ट, व्हाट इज़ देयर, लास्ट में हमारा ये है एरर फाइंडिंग. सो आई विल जस्ट टेल यू, एक्सप्लेन यू फ्यू 2-3 एग्जांपल्स मैं आपको दे देती हूँ क्योंकि ये चैप्टर के बेसिस पे ही है. डू यू हैव डैश एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्स. सो इसमें क्या गलत है? देर इज़ अ एरर. एरर क्या है? डू यू हैव अ एक्स्ट्रा पेयर नहीं होता, एन एक्स्ट्रा पेयर, बिकॉज एक्स्ट्रा इज़ व्हाट? एक्स्ट्रा इज़ अ, एक्स्ट्रा का जो ई है वो वॉवल है. सो यहाँ एन होगा. सो ए को सर्कल करेंगे क्योंकि वो एरर है एंड आगे लिखेंगे एन, विच इज़ राइट. एंड नेक्स्ट, ही वर्क्स इन एन फेमस फर्म. सो इन एन फेमस फर्म नहीं होगा, एन विल नॉट बी इन अ फेमस फर्म बिकॉज इट इज़ अ कॉन्सोनेंट. नेक्स्ट इज़ गिव मी द लिटिल टाइम. सो गिव मी द नहीं होता, गिव मी अ लिटिल टाइम, अ लिटिल टाइम. नेक्स्ट इज़ इट इज़ डैश यूज़फुल इन्फॉर्मेशन. इट इज़ एन नहीं होगा, इट इज़ अ यूज़फुल information. So like this, children, you have to do it, and please do it yourself so that we can compare. You can compare your answers with mine so that we can check it. ठीक है? So I hope you understood this chapter clearly. Rest, if you still have any doubts, any queries, we will discuss it in tomorrow's class. Thank you and have a nice